Hello, everybody. In this session or in this lecture, the topic, the subject of discussion is जनरल इंग्लिश. इस जो सत्र है, इस सेशन में जो भी टॉपिक है डिस्कशन का, जो चर्चा का विषय है वो है सामान्य अंग्रेजी. अंग्रेजी इट इज कॉल्ड इन हिंदी. So what is basically the general English is, and ये general English है क्या, and we are just studying. अभी जो स्टडी हो रही है और जो चीज देखी जा रही है वाया द प्लेटफॉर्म लर्निंग एजुकेशन सेंटर प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, एंड where now the question is the only the curiosity, the point of concern is that where this general English is used. जनरल इंग्लिश इज यूज्ड एवरीवेयर. जो सामान्य अंग्रेजी है दैट कम्स एवरीवेयर, हर जगह अच्छी है, हर जगह पूछी जाती है. However, it is a language, definitely English is a language और अंग्रेजी एक भाषा है. और then so it is used generally either globally, पूरे वैश्विक स्तर पे अंग्रेजी बोली जाती है. So globally if it is spoken like either English spoken or whatsoever in simple conversations, in debates, in sessions, in lecturates, or in common use, in just simple day-to-day use, this English is getting to use. We are just using what this English. And in competitive examinations also, in competitive examinations basically it will come as an what subject. It will come as a subject, or there are some points which are coming in the competitive exam, in various competitive examinations. In any of the competitive examinations, this English, general English or the English is getting to ask. Why are some questions? Why are some PYQ, we generally say, or MCQ, multiple choice answer questions, objective, either some may be descriptive as well. या तो लघु प्रश्न उत्तर होंगे, या फिर वैकल्पिक प्रश्न होंगे, या फिर विस्तारित प्रश्न होंगे. By this way only either that will be descriptive or objective whatsoever. This subject generally asked. However, this subject general English is asked in lecture in colleges, universities, in the various curriculums in universities and colleges as well. हालांकि जो ये सामान्य अंग्रेजी सब्जेक्ट है, विषय है, ये कहाँ यूज होता है? कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं. इन स्कूल्स में सभी में एज एन इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं विषय के रूप में. और इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उनमें भी ये प्रयोग होता है. साथ में जब सत्र करते हैं, जब कोई लैंग्वेज करते हैं, कोई ग्रुप डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर लेते हैं, या कुछ भी एनीथिंग, कोई गॉसिप्स करते हैं, कई बार मजाक भी कर लेते हैं. अक्रॉस द ग्लोब बोली जाती है, जहां पर ये मातृ टंग या मदर टंग के रूप में बोली जाती है वहां तो होता ही है. तो इस तरीके से दिस इंग्लिश इज जनरली यूज्ड. Now what we will generally study in this general English is, we'll study here, the study will goes on like comprehension and passage. Generally the question may generally asked with what this comprehension and what passage, and then precise writing, and then usage and vocabulary. There are some usage and vocabulary. Now one by one if you will take, so what is this? Initially if you will go like this, usage and vocabulary, and then short essay, then grammar, then sentence correction, synonyms and antonyms, and idioms and phrases, active and passive voices, and direct and indirect speech. So here, these are some of the questions, these are some of the topics, or these are some of the crispy things, topics, or the explanatory, these are some of the terms by which or in which the question is getting to asked in any of the examinations, either in university simple academics, or either in competitive academics, or either in competitive exams or day-to-day affairs. Now, what is this comprehension is? A comprehension or passage क्या है? Comprehension and passage is one. We have given just the question is like there are a paragraph, 2-3 paragraph or something like n number of paragraphs, multiple paragraphs. Even there may be even this is a chance that a single paragraph is here. A single paragraph is given, then that is called unseen passage or passage. Out of this passage or comprehension,
some questions are based on that comprehension. So need to answer the questions. That may be crispy, that may be latent based questions, that may be direct questions, that may be message based questions, that may be any kind of questions, that may be either direct, या तो वो सीधे होंगे, या प्रत्यक्ष होगा, या परोक्ष क्वेश्चन होंगे, दैट बी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो. सो दिस मे बी आस्क्ड, देयर मे बी एन asking of questions, different varieties of questions out of this comprehension of passage. So these questions may ask. Now the precise writing is what? Precise writing means there is a many paragraphs given. Let us suppose there is one page given, 2 page given. So out of that 1 or 2 pages, there we need to make it short. We need to make it what? Short to that paragraph, to that writing. So that is why it is called precise writing. Precise means to make compact, to make compact, छोटा करना. तो किसी दीर्घ इकाई को लघु करना, छोटा करना. So any comprehensive form of writing that should be short, and that is why it is called precise writing. That is also, that may also be asked. Usage and vocabulary. What is usage now? What is usage? Usage means in Hindi it is called prayog. Or we may generally say usage means where it is getting to implement, apply. Where it is getting to implement. Let us suppose there is a word, let us suppose there is a word, okay, there is a word, and where this word is getting to implement either as a sentence or as a word, either as a vakya or sentence, or either as a spoken thing, where it is getting to use, so that is called a usage. Usage means any kind of the use of anything, either that may be some parts of speech like grammar, that may be some article, either that may be a, where a is used, where n is used, where the is used, where there is a use of tenses, where there is a use of active and passive voices, direct and indirect speeches, subject verb agreement, common errors, like this. So where we need to use different things, either grammar, either words, either vocabulary, either idioms and phrases, कहाँ पर idioms phrases को use करना, synonyms, antonyms यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द use करना, ये सारा जो that is called usage. And vocabulary means शब्दकोश, शब्द ज्ञान, शब्द भंडार. तो इस तरीके से शब्दों का भंडार, शब्दों को इकट्ठा करना, वर्ड्स को कोएगुलेट करना, वर्ड्स को कॉन्केटिनेट करना, वर्ड्स को इकट्ठे करना और शब्दों को जो है जमावड़ा करना. सो दैट इज कॉल्ड मासिंग करना, शब्द को शब्दकोश बढ़ाना. दैट इज कॉल्ड vocabulary. So usage and vocabulary. That may also be asked. Short essay means we need to write some short essay. However, essay writing is also asked differently, but essay writing there may be a possibility in some competitive exams, either in some one-day exams, or there may be a possibility that English language it is getting to involve, or okay, so that is included in the English language itself. जो इंग्लिश लैंग्वेज में कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट ऐसे मतलब छोटा ऐसे. सो ग्रामर इज हैविंग, वी विल डिस्कस नाउ हियर द ग्रामर. सो ग्रामर मतलब व्याकरण मतलब होता है, व्हाट इज व्याकरण और व्हाट इज ग्रामर. ग्रामर मीन्स किसी भी भाषा को, इफ यू आर स्टडिंग हियर इंग्लिश, तो किन रूल से, किन नियमों से, किन सिद्धांतों से, किन वे प्रोसीजर्स से होकर के बोला गया, जोड़ा गया और फिर स्पोकन किया गया, लिखा गया. So that is why the correct way of doing things, that comes under what? Grammar. So व्याकरण, ऐसा करणीय कार्य जो किसी व्याख्या के साथ किया जाए, जो किसी सही पद्धति को अपना करके किया जाए, that is supposed to be like grammar. Now sentence correction. Let us suppose there is a sentence given. कोई sentence दिया है, अब वो sentence में कोई त्रुटि है, there is a mistake. If there is a mistake, then that mistake has to be removed. उस mistake को सही होना है. अब सही होना है तो that mistake may be of noun, pronoun, parts of speech, that may be of article, that may be of some preposition की mistake हो सकती है, that may be of some tenses mistake, either काल की mistake हो सकती है, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, whatsoever हो सकती है, एक्टिव और पैसिव की हो सकती है, या फिर वर्तनी स्पेलिंग की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है. दैट में भी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच,
और इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हो सकती है और कॉमन एरर भी हो सकती है, छोटी छोटी जो चीज पहले का सेगमेंट बाद में, बाद का पहले, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो सेंटेंस करेक्शन वी मे डू। सो सेंटेंस करेक्शन को पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, ए बी सी डी ई। तो कौन से वाले में गलती है? तो वो गलती इन तरीके से हो सकते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड स्पॉटिफाई। कैसे होगा? और फिर देन नीड टू करेक्ट, फर्स्ट इनिशियली डायग्नोज एंड देन करेक्ट। कैसे होगा? हाउ? ऐसे होगा कि पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सब चीजों का, देन ओनली हो जाएगा आराम से। सो व्हाट इज सिनोनिम? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है बहुत सारे एक वर्ड के मतलब कई सारे वर्ड्स के एक ही मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम। एंटोनिम मतलब होता है, सिनोनिम को हिंदी में बोलते हैं दैट इज सपोज्ड टू बी पर्यायवाची, और एंटोनिम को बोलते हैं विलोम शब्द, मतलब विपरीतार्थक शब्द, प्रतिकूल जिसका मीनिंग होता है, और जो अनुकूल होता है वो सिनोनिम है। सो एनोनिम्स, एंटोनिम्स व्हिच इज हैविंग डिफरेंट एंड अपोजिट मीनिंग, ऐसे को बोलते हैं दैट इज सपोज्ड टू बी एनोनिम्स। So what is idioms and phrases? बोलते हैं लोकोक्ति और मुहावरे। तो इसका it means that the ones, the if suppose there are some sentences which are very popular, which are popularly spoken by the people, so that is why they are supposed to be either the idioms and the phrases, and they are generally taken as a frequent usage by anybody. So that is why it is supposed to be either idioms and what phrases. That may be asked generally in the examinations in the case of what general English. Now, what are active and passive voices? Voices may be either of two types, either like active voice and passive voice. Let us suppose, what is this voice? Voice means किसी की आवाज, voice. तो it means that किसी चीज को बोलना, और बोलना अगर if there is active मतलब होता है प्रत्यक्ष बोलना, और passive मतलब होता है अप्रत्यक्ष तरीके से बोलना। It means that if suppose, let us suppose I speak, मैंने कुछ बोला, मैंने suppose कोई चीज बोली, अगर उसको as it is quote करके बोला गया तो that is supposed to be something like what? That is something like active. And what is passive voice? अगर उस चीज को घुमा दिया गया, किसी चीज को घुमा दिया गया और उसमें कुछ जोड़ दिया, अपने हिसाब से नैरेट और इंटरप्रीट करके बोल दिया, तो दैट इज सपोज्ड टू बी पैसिव वॉइस। और भी बहुत सारे मीनिंग्स के होते हैं एक्टिव एंड पैसिव के। ऐसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी होते हैं। जैसे स्पीच है, स्पीच अगर बोली तो स्पीच में अगर वही चीज बोली गई तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो घुमा फिरा के बोल दी गई है। अप्रत्यक्ष रूप से बोल दिया गया तो लाइक दिस ओनली, एंड वी विल से लेट अस सपोज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर लिखा गया। नाउ व्हाट इज देयर? अब ये जानना जरूरी होता है कि पहले वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स टू स्पीक अपॉन, सो वी नीड टू डू हियर द व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो स्पीच है उसके हिस्से कौन कौन हैं? तो ये ग्रामर का मॉड्यूल नंबर 1 है। लेट अस सपोज वी हैव द सेक्शन 1 और द पार्ट और द सेक्शन 1 if we are going to discuss regarding this grammar, then the parts of the speech we generally use to speak. So there are 8 parts of speech. What 8 parts of speech? Parts of speech, let us suppose noun. Noun मतलब होता है संज्ञा, विषय, वस्तु, स्थान के नाम को, either the place, name and like that is called what? Article, thing, that is called noun. जैसे India, river, that is called what? River, that is called what? Noun. Now the noun maybe have different like abstract noun we are just discussing. Now proper noun, pronoun. What is pronoun? He, she, they are pronoun. In the place of noun which are getting to be used, they are pronoun. So now what is verb? Verb is like eat and write, read, dance, singing, okay, and driving, that is called, and just speaking. So they are supposed to be verb. Verb मतलब क्रिया, कोई काम करना, क्या काम कर रहे हैं, so that is called verb. Now adjective, verb and then adjective. Adjective means जो किसी चीज की विशेषता बताए, something specific, something which is specifically done, so that is adjective. Means beautiful, सुंदर, और then handsome, smart, और honest, ईमानदार। तो इस तरीके से that is supposed to be something like adjective. Then adverb. What is adverb? Quickly. Adverb मतलब जो किसी चीज, वर्ब की साथ सहक्रिया, so the वर्ब की विशेषता बता रहा हो तो that is called adverb. Adverb. Add कहां से? adjectives के जो adjective का जो starting है तो that root has been, that word initial has to be taken और उसको verb के आगे लगा दिया, मतलब verb का adjective, verb की विशेषता बताना, that is supposed to be adverb. So adverb means quickly, slowly, फटाफट, quickly, slowly, gradually, मतलब धीरे धीरे, फटाफट, इस तरीके से
नाउ प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन है तो प्रिपोजिशन कौन है, जो चीज जोड़ता है, जैसे इन, ऑन, एंड देन अंडर, है ना, अंडर होता है, जैसे इन, इन मतलब अंदर। अब इनटू बोलेंगे तो देन व्हाट, इट मींस दैट वन मीडियम टू अनदर, मतलब कि अगर एक मीडियम से दूसरे में जा रहा है तो दैट इज सपोज टू बी इनटू। लेट अस सपोज समबडी इज गेटिंग टू जंप इनटू वाटर, तो क्या कह रहा है कि जंपिंग इनटू द वाटर होगा, इन द वाटर नहीं होगा उस समय पर। सो दैट इज कॉल्ड द करेक्ट यूज ऑफ सम प्रोनाउंसिएशन। ये भी चीजें हम बताएंगे, ये भी चीजें मैं बताऊंगा, उसके नियम कैसे होते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब होता है एंड बट, जैसे एंड मतलब और, एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, so they are called conjunction, conjunction ये parts of speech है। now interjection, interjection wow अल्लाह हुर्रे, और इस तरह, अरे अरे क्या हो गया, इस तरीके से। so these are some of the things which are supposed to be like interjection, वाह ऐसे जैसे बोलते हैं, so they are called interjection। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक, मतलब जिसमें विस्मय प्रकट कर रहे होते हैं। और now नाउ व्हाट इज, अब जैसे लिखते हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया क्या नाउन है, देन व्हाट इज व्हाट वर्ब। अब ग्रेट क्या एडजेक्टिव है और कंट्री क्या है अगेन नाउन, तो इसीलिए सो व्हाट इज नाउन नाउ, नाउन क्या होता है, नाउन नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, जैसे कोई व्यक्ति है, देन प्लेस, देन आइडिया कोई विचार है, थिंग्स है, मतलब जिसने मूर्त रूप ले लिया जैसे इंसान का ही, मतलब कोई संज्ञा संगित हो चुका है। कहने का मतलब जैसे कई बार किसी क्वालिटी को भी ऐसा बता दिया जाता है कि वो प्लेस जैसा लगता है, स्थान जैसा लगता है, व्यक्ति जैसा, जैसे बोलते हैं कि इसको इसकी संज्ञा दे, किसी को ऐसी संज्ञा दे दी, तो इट मींस दैट इट इज गेटिंग टू बी नाउन्ड। तो इसका मतलब जैसे बोलते हैं नाम से भी बोलते हैं ना, रीनाउन्ड, तो इट मींस दैट कोई चीज बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित है और अपनी जगह पर स्थान साइटेड है ऐसे। तो नाउन इज अ नाउन नेम अ प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया। क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन है, जैसे स्पेसिफिक नेम है एकदम निश्चित, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, जैसे उत्तराखंड, ओके दैट इज स्पेसिफिक, लाइक गंगा एंड देन राहुल, ये इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल लाइक प्रॉपर नाउन। और अगर कॉमन नाउन होगा तो जनरल नेम्स, जैसे कोई भी कॉमन नाउन जैसे होते हैं लाइक सिटी एंड विलेज and like river, boy, तो इस तरीके से they are supposed to be common noun। collective noun means group of people and things, जो group of people लोगों के समूह को दर्शाते हैं, क्लास को दिखाते हैं, they are supposed to be what, collective noun, like team, army, कमिटी, कमिटी मतलब समिति, एक समिति में बहुत सारे सदस्य होते हैं लेकिन कहीं वो समिति जाती है, कमिटी, कमीशन, जैसे किसी आयोग में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो कमिटी, कमीशन, लाइक दिस। सो दे आर सपोज्ड टू बी द कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट नेक्स्ट, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में तो मटेरियल की बात होगी, मटेरियल मींस गोल्ड, जैसे गोल्ड है, वाटर है, आयरन है, इस तरीके से। अब गोल्ड, वाटर, आयरन है तो दे आर सपोज्ड टू बी मटेरियल नाउन। अभी आजकल गोल्ड वाला भी है, अब बहुत सारी चीजें, कुछ समसामयिक तरीके से घटनाएं भी होती हैं तो तब ज्यादा जो है फोकस की कई बार हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आइडियाज एंड क्वालिटीज। अब जैसे आइडियाज हैं और क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज को निकालना, किसी चीज से किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट करना और निचोड़ना, किसी चीज का निचोड़ बनाना, किसी चीज को समराइज करना, जोड़, किसी चीज को जो है किसी क्रिस्प तैयार करना। सो दैट इज व्हाई सपोज्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो इट मींस दैट आइडियाज एंड क्वालिटीज, किसी भी चीज के विचार और जो क्वालिटीज हैं उसमें जो गुण है, गुणात्मकता है वो क्या है, और इस तरीके से क्रक्स तैयार करना। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे समरी करना तैयार, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, जैसे ऑनेस्टी, अब किसी के अंदर है तो ऑनेस्ट, ईमानदारी है, सो ईमानदारी मींस ऑनेस्टी। और करेज, साहस है, और ब्यूटी, सुंदरता है, ऑनेस्टी है, किसी में एथिक्स है, किसी में कुछ है, किसी में बोलने की शैली है, किसी में कोई है, किसी में वाचन शैली है, किसी में पढ़ने का है, किसी में बहुत दिमाग है, किसी में कुछ खेलने का है, स्पोर्टी है, तो लाइक दिस, कोई फैंसी है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट में भी एब्स्ट्रैक्ट, कोई ना कोई किसी चीज से जो है निकालना। Now these kind of nouns, they are supposed to be the kinds of noun or the types of the classifications, वर्गीकरण कहलाता है nouns का यानी संज्ञा का। Now what next is, they are supposed to be, next is pronoun। pronoun क्या है, replaces noun, like example he, she, they, it, we।
So Rahul is intelligent, he is intelligent. Okay, कोई भी चीज, let us suppose now verb, what is verb? Shows action or state. जैसे मान लीजिए कोई एक्शन और स्टेट है, कोई भी चीज है एक्शन और स्टेट दिखा रहा है, अगर कोई एक्शन और स्टेट दिखाता है तो वर्ब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रन, दौड़ो, ईट खाओ, राइट, थिंक, स्लिप। सो तो इसीलिए बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब मतलब कोई क्रिया। Now, adjective is describes noun. Adjective जो होता है वो noun को describe करता है। Beautiful flower, जैसे कोई फूल है तो क्या होगा, वो बहुत सुंदर है, रमणीय है। कोई प्लेस है, कोई जगह है, तो इट मीन्स दैट, जैसे बोलेंगे ना, वाओ अ ब्यूटीफुल साइटेशन, ओके। या फिर मार्वलस, क्योंकि कई चीजों की भी डिग्री होती है, जैसे बोलेंगे कि फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, बहुत सारी चीजें होती है, देयर विल बी अ डिग्री, स्केल होती है चीजें बढ़ाने की। तो इस तरीके से जो है एडजेक्टिव मींस डिस्क्राइबिंग नाउन, लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर। टॉल बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग तो है लेकिन लंबी है, इस तरीके से। ऑनेस्ट ऑफिसर, तो कोई ऑफिसर है लेकिन वो कैसा है, ऑनेस्ट है। और जैसे कोई भी है ना, अगर आशय भी इसका यूज है तो ऑफिसर शुड बी ऑनेस्ट। ऑफिसर को कैसे होना चाहिए, ऑनेस्ट होना। अ पर्सन शुड बी एनर्जेटिक, किसी भी व्यक्ति को ऊर्जावान होना चाहिए। किसी भी है ना स्टूडेंट, छात्र, युवाओं को कैसा होना चाहिए, ऊर्जावान, अपनी बातों को बिल्कुल कह गुजरने का मनोभाव होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑनेस्ट ऐसे एडजेक्टिव है। एडवर्ब यूसेज है इसके। एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अनदर वर्ब्स। Means he runs quickly, she speaks softly, ये एडवर्ब है, मतलब बोलते हैं, कोई बोलते हैं और वो क्या है, सॉफ्टली, धीरे, फास्टली, शाउटेडली, एनर्जेटिकली, तो वो सब क्या है, क्वालिटीज है। प्रिपोजिशन क्या होता है, शोज रिलेशनशिप। अब संबंधीकरण अगर दिखाना है तो संबंधीकरण दिखाने में प्रिपोजिशंस होते हैं। सो प्रिपोजिशंस आर यूज्ड फॉर व्हाट, some relationship, shows relationship. Example, in, on, under, besides, among. अब there is a difference between among and between. अब जैसे एक है among, है ना, among है, और between हो गया, let us suppose। ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। So अगर दो चीजों के, if there is a relationship between two things only, तो then between is used. If there is a relationship between more than two, then among is used. जैसे अगर कोई लेक्चर हो रहा है, लेट अस सपोज कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, अगर वो चीज है तो वो among the people, among the what, among the thing, among the candidates। लेकिन अगर कोई दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, only two people are involved, then जैसे फोन में बात कर रहे हैं और एक ट्रांसमिशन में है और एक रिसीविंग एंड पे है, तो there is a conversation between transmitting end and conversation end, तो this is called what, among। so अगर कोई पावर ट्रांसफर हो रहा है तो जनरेशन से फाइनल कंजम्पशन, so there is a power transfer between जनरेटिंग पॉइंट टू लोड सेंटर। जो दो चीजें किसी भी क्षेत्र में है तो अगर वहां पर है तो बिटवीन, अगर ज्यादा है तो उसे तो अमंग लगता है। सो दैट इज प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन का मतलब होता है शोज रिलेशनशिप। कंजंक्शन मतलब होता है जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। जैसे कंजंक्शन मतलब जो जोड़े चीजों को, जैसे एंड, बट, बिकॉज, अल्दो, हाउएवर, हालांकि, मोरओवर, और ज्यादा, यद्यपि, सिंस, तथापि, ऐसे करके जो चीजें जोड़ते हैं तो दे आर व्हाट, कंजंक्शंस। जैसे ऐसे बोलते हैं ही इज पोर बट ऑनेस्ट, मतलब वो गरीब तो है लेकिन क्या है, ईमानदार है। लेकिन इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से बोला जा सकता तब है कंजक्शन। इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन? एक्सप्रेसेस इमोशंस। इंटरजेक्शंस में अपने भाव निकलते हैं, भाव भंगिमाएं प्रकट होती हैं। सो दैट इज व्हाई दैट इज सपोज्ड टू बी इंटरजेक्शंस। लाइक एग्जांपल, वाओ, है ना, अल्लाह, हुर्रे, ओ, ऐसे करते हैं ना, जैसे इस तरीके से, लाइक व्हाट, अरे वाह, इस तरीके से बोलते हैं। तो दैट इज सपोज्ड टू बी व्हाट, दे आर द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। नाउ द सेकंड section what we discuss is articles. Now there are two types of articles which are called to be a definite article and indefinite article. So indefinite article is a and n. So a and n, they are called indefinite article. So indefinite article, and the is called definite article. Definite मतलब जो चीज हिलती नहीं है, अपनी यथावत बनी रहती है, that is called definite, स्थिर। और indefinite मतलब जो अनिश्चित है, जिसका definite नहीं है, तो that is called indefinite article. A means used before consonant sounds. There are two things like consonants and vowels.
सो कॉन्सोनेंट्स का वोवेल्स का ए ई आई ओ यू, उसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उसके पीछे जैसे यूज करते हैं, आगे यूज करते हैं अ बॉय, a university, so like this they are called indefinite article। so n कहाँ यूज करते हैं, used before vowel sounds, vowel sounds जहाँ होते हैं वहां पे n, an apple, so like an r, तो इस तरीके से n यूज करते हैं। what is definite article, used for specific noun जैसे the sun, the river, इस तरीके से the गंगा, जैसे गंगा है ना, तो वैसे बोल द हिमालय। अब हिमालय तो अपनी जगह से खिसकने वाला नहीं है ना, यथा पे बना रहेगा जहां पर भी है, तो इस तरीके से द हिमालय, तो इस द गंगा, और गंगा तो अपनी जगह नहीं, द सन, इस तरीके से, तो दैट इज व्हाई व्हाट डेफिनेट आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट इज टेंसेस। अब टेंसेस में तो बहुत प्रकार है, तो दैट विल बी पास्ट टेंस, दैट विल बी प्रेजेंट टेंस एंड दैट विल बी व्हाट फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस में भी क्या होता है, इनडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से होते हैं, हर एक प्रकार होते हैं। तो पास्ट में 4 हो गए, प्रेजेंट में भी 4 हो गए सब कैटेगरीज एंड future is also having 4 subcategories. It means that 12 tenses are there in different forms. तो इस तरीके से we will discuss next in the next sessions also about the tenses, present tense like subject plus verb plus ses form। तो कहां पर क्या लगता है, continuous tense में just ing form is used, verb का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगता है। तो जैसे eat ate eat, eat ate ate, इस तरीके से खाया, जैसे और was where, जैसे was है, was का पास्ट क्या, was जो है वो पास्ट है, और अगर प्लूरल में यूज हो रहा है तो was है, बट सिंगुलर में हो रहा है तो were, was मतलब था, were मतलब थे, इस तरीके से we will discuss upon thoroughly in the future। okay, now the active and passive voice, let us suppose active मतलब the teacher teaches student। अब टीचर ने क्या करा, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो दैट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव मतलब किसी चीज को डिलीवरी करना, और जो करने वाला है उससे करने वाले के प्रति, जिसके प्रति कर रहा है वो, तो इसीलिए एक्टिव कहलाता है। एक्टिव मतलब जो चीज डिलीवर, पैसिव मतलब जो ग्रहण करने वाला होता है वो पहले। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर, जो ग्रहण करने वाला वो पहले आ जाता है। सो स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर, मतलब स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर, दैट इज पैसिव। और एक्टिव क्या है, द टीचर टॉट, द टीचर टीचेस स्टूडेंट, टीचर ने पढ़ाया किसको, प्रोफेसर टीचेस स्टूडेंट, प्रोफेसर ने बताया किसको, स्टूडेंट्स को बताया, स्कॉलर्स को बताया। सो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट है और रूल्स है। तो एक्टिव, ही राइट्स अ लेटर, पैसिव होगा लेटर इज रिटन बाय हिम, इस तरीके से। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट में क्या होता है, अगर डायरेक्टली पहली बार सीधा बोला गया है तो वो सिंगल कोटेड करके जैसा बोला गया है वैसा ही बताया, तो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। लेकिन अगर उसमें जोड़ दिया, घटा दिया अपनी बुद्धि के हिसाब से, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट। तो क्या डायरेक्ट में क्या है, ही सेड आई एम बिजी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसने बोला भाई मैं तो व्यस्त हूं। तो और फिर क्या, इनडायरेक्टली बोला, ही सेड दैट, उसने कहा कि he was busy, वो बिजी था। तो उसने बोल दिया कि he said that, अपने मन से जोड़ा कि he was busy, लेकिन उसने तो ये बोला था ना कि I am busy। अगर I am, वही एग्जैक्टली वर्ड्स का रेप्लिकेशन किया, रिप्रोडक्शन किया, है ना, उसी तरीके का पुनरावृत्ति करी, अरे पुनरुक्ति करी, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ओके, लेकिन अगर उसी चीज को नैरेट ना करके उसमें जोड़ घटाना कर दिया, प्लस माइनस एडिटिंग कर दी अपने हिसाब से, बुद्धि अनुसार, इंटरप्रिटेशन, समझदारी लगा दी, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, लाइक दिस। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक करेक्ट और इनकरेक्ट करके ले लेते हैं। लेट अस सपोज द बॉय इज प्लेइंग, बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या अब करेक्ट क्या, द बॉयज आर प्लेइंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब में इस तरीके से एग्रीमेंट है, क्योंकि बॉयज आर प्लेइंग, बॉय इज प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या, द बॉय इज प्लेइंग, लाइक दिस, द बॉयज इज प्लेइंग, मतलब बॉयज भी लगा रहे हैं, प्लूरल भी लगा रहे हैं, फिर इज भी लगा रहे हैं। जब प्लूरल आएगा तब तो आर है, इस मतलब है, आर मतलब है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब, जो सब्जेक्ट है और जो क्रिया है उसके मध्य क्या जो है, क्या चीज, कैसा संबंध स्थापित हो रहा है, दैट इज एग्रीमेंट। कॉमन एरर्स हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट है, कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन आइदर सेंटेंसेस, ये सब चीजें मैंने बताई हैं, कॉमन एरर्स।
Now what synonyms there are like brave, brave का courageous, honest का truthful, happy का joyful, quick का rapid और फटाफट, begin का start, initial ऐसे भी हो सकता है, so end का finish, and now small का tiny, small का tiny, small मतलब भी छोटा, tiny मतलब भी छोटा, और large का huge, और beautiful का attractive, और इस तरह rich का wealthy, और एंटोनिम्स में क्या होता है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान जो ईमानदार नहीं होता है, और रिच एंड पुअर, विक्ट्री डिफीट, विक्ट्री मतलब जीतना और डिफीट मतलब हारना, एंशियंट का मॉडर्न प्राचीन पुरातन, एंशियंट और ऑनेस्ट और मॉडर्न मतलब नूतन नया नया, और ये सक्सेस का फेलियर, सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त करना और फेलियर मतलब असफल, एक्सेप्ट हैप्पी और सैड, हैप्पी मतलब खुश होना और सैड मतलब दुखी होना, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट किसी चीज का एक्सेप्ट होना और रिजेक्ट होना, नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक, सो लिबर्टी एंड स्लेवरी, तो आपस में लिबर्टी एंड स्लेवरी, अब लिबर्टी में क्या है कि उदारता है, जो कर लो, और स्लेवरी मतलब गुलामी कराना किसी चीज को, तो इसी तरीके से दैट इज व्हाट एंटोनिम। सो अब नेक्स्ट अगर चीज देख रहे हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल इडियम्स बोलेगा क्या मीनिंग क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वंस इन अ ब्लू मून, क्या होता है इसका मतलब, वेरी रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून, जैसे बोलते हैं ना कई बार आपको ईद का चांद हो गए, भाई कोई ईद का चांद हो गया मतलब अब कोई कह रहा है कि कोई तुमने तो दिखना ही बंद कर दिया, इस तरीके से, तो कहने का मतलब इस तरीके के वो स्लैंग्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, वो चीजें होती हैं, जैसे बोला कि अब कहाँ हुआ आजकल तो दर्शन ही नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि आजकल दिख नहीं रहे हैं, तो ये सब चीजों का मतलब वेरी रेयरली, वेरी रेयरली, अब जैसे फॉर एग्जांपल अ ब्लेसिंग इज डिसग्रेस, इसका मतलब समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, जैसे पीस ऑफ केक, जैसे मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी मतलब वेरी इजी, ये तो बहुत ही सिंपल है, सरल है, करना आसान है ऐसा, ब्रेक द आइस, अब जैसे ब्रेक द आइस बोला मतलब स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, जैसे आइस होती है ना, बर्फ होती है, बर्फ अकड़ी रहती है अपनी जगह पर, अब सब कोई बैठा और बात नहीं कर रहा आपस में, अब घमंड स्थापित करके अगर बैठे हुए हैं और बातें नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ब्रेक द आइस बोला, तो बोला कि अरे भाई ये सब छोड़ो, बात करना शुरू करो, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन मतलब आपसी जो संवाद है, संवाद स्थापित करना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, ऐसे करके, अंडर द वेदर, अब जैसे अंडर द वेदर इसका अर्थात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अंडर द वेदर, फीलिंग इल, अपने आप को अंडर द वेदर मतलब जैसे वेदर होता है उसके अंदर, तो अपने आप को फील करना कि इल है, बीमार है मतलब अस्वस्थ है, ऐसा ठीक नहीं करना, फील ऐसे, लाइक दिस, एंड कुछ और अगर देख लें, जैसे बोला बर्न द मिडनाइट ऑयल, जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब हो गया स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, मतलब लेट नाइट आवर्स में काम करना, लेट नाइट आवर्स में एक्टिव रहना, सो दैट इज कॉल्ड बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब जो रात को भी तेल जला रहा है, तो कहने का अर्थात मतलब यह है कि कोई व्यक्ति रात को भी खट रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट दैट इज सीम्स टू बी समथिंग लाइक idioms and phrases and the meaning of the idioms, but now the vocabulary for the frequently asked vocabulary for some UPSC or from some exam for competitive examinations कुछ ले लेते हैं और फिर there only, क्योंकि vocabulary is जैसे बैरन्स की बुक है, बैरन्स की बुक है, हाउएवर सम टॉफल और जिस तरीके से जीआरई वगैरह की तैयारी करते हैं और इस तरीके से जो विदेशों में पढ़ने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए जो भी स्कोर चाहिए होता है, इसके लिए भी इंग्लिश तैयार करते हैं, इंग्लिश बहुत सारी होती है बोलने के लिए भी, मतलब मल्टी जितने भी मल्टी फेसेटेड प्रयोग हैं, यूज हैं, यूटिलिटीज हैं, सब किए जा सकते हैं, जब किए जाते हैं तो देन ओनली यहाँ पर बैरेंस की बुक आती है, मेड इजी की एक बहुत सारी बड़ी मोटी बुक आती है, बहुत सारी ऐसी किताबें भी आते हैं आजकल तो ऑनलाइन इतना सब कुछ है, और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स में, यूके फॉन्ट में और इंग्लैंड वाले फॉन्ट में, ब्रिटेन वाले फॉन्ट में, ब्रिटिश फॉन्ट में कैसे बोलेंगे उसको, यूएस फॉन्ट में, अमेरिका वाले फॉर्मेट में कैसे बोलेंगे, लाइक किस किस तरीके से बोलेंगे, डिफरेंट, बस फॉन्ट और टोनिक डिफरेंस है, द टोनिक वेरिएशन जरूर है। सो वोकैबुलरी क्या है, देयर आर फ्रीक्वेंटली कुछ इस तरीके से जो
जिनकी आवर्ती ऐसे वृत्ति जो है जो बार बार वृत्ति है, तो ऐसे कुछ शब्दकोश हैं, कुछ ले लेते हैं। जैसे एलिविएट, एलिविएट करना, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना, मतलब धनाढ्यता लाना, संपन्नता लाना, इस तरीके एलिवेशन। तो एलिवेट मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। और नाउ एम्बिग्युअस मतलब होता है अनक्लियर। अब जैसे बोलते हैं ना एम्बिग्युअस है, अनक्लियर मतलब फजी भी हो सकता है, धुंधला, एकदम क्लियर नहीं, क्रिस्पी नहीं है, एज्ड नहीं है, एकदम से 1-0 में डिजिटलाइज नहीं है, मतलब एकदम लॉजिकलाइज नहीं। तो कहने का मतलब एम्बिग्युअस मतलब किसी चीज का धुंधला ऐसे होना, नॉन क्लियरनेस, ऐसे अनक्लियर। बेनिवोलेंट, जैसे बोलते हैं ना बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, तो इसका मतलब काइंड, जैसे काइंड होता है ना कई बार, लेकिन कई बार द्वंद्वात्मक रूप से भी प्रयोग किया जाता है। In the language of somewhat management or in the language of something else, in the language of some humanity, some benevolent authoritative use भी होता है। अब benevolent authoritative use तो होता है, यूसेज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, मतलब मुंह से खिलाओ गाजर और पीछे से मारो गेंद। तो दिस इज कॉल्ड benevolent authoritative। इट मींस दैट व्हाट, इसका मतलब यह है कि मुंह पे तो अच्छा अच्छा बोला, जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, तो इसका अर्थ यह है कि मुंह में तो अच्छा करना, लेकिन जो है पीछे पीठ पीछे आप कुछ भी कर सकना। तो बेनिवोलेंट अथॉरिटी, या फिर आराम आराम से, साइलेंटली और प्यार प्यार से मारना, प्यार प्यार से जो है काम करा लेना, ऐसे ऑथोरिटी साध लेना, ऐसा भी कहा जा सकता है। सो बेनिवोलेंट मतलब काइंड। अब वो काइंड किसी भी अर्थ में हो सकता है, लेकिन होता काइंड इसका मतलब है। सो नाउ व्हाट इज now pragmatic, what is pragmatic मतलब practical, व्यवहारिक, so that is pragmatic। और resilient, resilient मतलब होता है able to recover quickly, so resilient is also called reliable, reliable। robustness, it is also called robust, resilient, resilient का होता है, resilient means robust, robust मतलब होता है कि फटाक, सेल्फ इम्यून, अपने आप से स्वतः, जैसे कोई गिरे तो एकदम खड़ा हो जाए। कोई चीज जैसे इम्यूनिटी होती है, बॉडी में इम्यूनिटी होती है, काहे के लिए होती है? वो इसलिए होती है कि अगर कोई चीज रोग आ जाए तो रोग के प्रति स्वतः जो है प्रतिरोधक क्षमता खड़ी हो जाए। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए जैसे कोई भी चीज आ रही है, जैसे अब बारिश आ रही है, बारिश आते समय में ऐसा अपेक्षित भी है अगर रोबस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है, तो तब लाइट में आने की, बंद करने की जरूरत नहीं होती है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई भी चीज है, अगर ऐसा ही नहीं बल्कि कोई और भी चीज, किसी भी चीज को अगर वो कंटिन्यूएशन में ही है, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया और फॉल्ट आने के बाद अगर कोई चीज खुद से इम्यून हो जा रही है या अनहेल्दी सेक्शन थोड़ी देर के लिए आउट हो रहा है, जब तक वो नहीं करता, जैसे घर में एमसीबी लगी रहती है, मिनिएचर सर्क्यूट ब्रेकर, अगर ज्यादा रेटिंग का कोई चीज आ जाए तो फॉल्ट हो जाए, खट से ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने क्षेत्रों में रेजिलियंसी होती है और सेल्फ इम्यून, सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड, इस तरीके से बोलते हैं। अब देयर आर सम प्रिसाइज राइटिंग की टिप्स होती हैं। अब गुड प्रिसाइज शुड रिड्यूस द पैसेज टू अबाउट 1/3, एक तिहाई बनाना होता है प्रिसाइज राइटिंग में। प्रिजर्व द सेंट्रल आइडिया, लेकिन जो मेन आइडिया उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उनको तो लिखना ही पड़ता है। सो यूज योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों का चयन लिखना पड़ता है। अवॉइड एग्जांपल्स एंड रिपीटिशन, बार बार मोनोटोनस बिहेवियर लैंग्वेज की राइटिंग में लिखना नहीं पड़ता है। मेंटेन द ओरिजिनल टोन, और जो ओरिजिनल पैराग्राफ लिखने की जो स्किल है और जो पैराग्राफ राइटिंग का जो भी लिखने का तरीका है उसको ही रखना पड़ता है, मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं बनाना पड़ता है। एंड देन गिव अ सुटेबल टाइटल, और जो शीर्षक है उस शीर्षक को भी अच्छे से चयनित करना ही पड़ता है। Now, essay writing tips में like introduction, and like in introduction generally use definition, quotations and then current context, अभी जो वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसको भी जोड़ते हुए बता सकते हैं कि इसमें और ये चीजें अब हो रही हैं, अभी नई नई चीजें की इनोवेशन ऐसी है। बैकग्राउंड, एक्सप्लेन द इश्यूज एंड द सिग्निफिकेंस, की क्या क्या है, कैसा कैसा है, उसकी पूरी भूमिका और उसका पूरा प्रारूप लिखना है ना। और मेन बॉडी, present balanced arguments with examples like data and case studies like this only, this is the main body, मुख्य जो भाग होता है वो। और challenges, discuss problems and limitations, क्या सीमा है, क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या हिलअप्स हैं उसके, so pros and cons हैं, तो ये सब चीजें challenges में आते हैं। solutions, अब वो चीज बता दी, अगर कोई समस्या बताई गई, कोई चीज को इश्यू रेस किया गया, तो सिर्फ समस्या का ही पार्ट थोड़ी बनना होता है,
समाधान का भी हिस्सा बनना होता है उसके आगे। तो अगर चैलेंजेस दिए हैं तो फिर उसके सॉल्यूशंस भी तो बताने पड़ते हैं। तो इट मींस सजेस्ट प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव मेजर्स एंड देन कंक्लूजंस, और फिर लास्ट में जो है कंक्लूजन एंड विद अ पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग विजन। नाउ सो रिकमेंडेशंस यही है कि डेली डेली जो है वन नीड्स टू राइट रीड एडिटोरियल्स इन व्हाट गुड न्यूज़पेपर्स, printing media newspapers, and one needs to write up with daily vocabulary portion according to the capability, learning capability and retaining capability. Solve one comprehension passage a day only, and at least, and practice one grammar topic like tense one again, and continuously revise the topics and get in touch always and never, like, and daily write some essay in own words, and then like revise, initially revise idioms, at least go through the idioms regularly, phrases and common error questions, by taking interest, not as a बोझा, बोझे के रूप में नहीं, ऐसे नहीं कि बस कोई चीज को खाली लधार दे करके पढ़ दिया, लाइक दिस ओनली, मतलब इंटरेस्ट के साथ अगर किसी चीज में कर ही लिया है तो फिर पूरे ही होके करेंगे इस तरीके से। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना है। लेकिन अगर पूछ ही लिया है तो फिर पूरे हो के रहें और पूरे हो के बताएं, ऐसी ही बात है। सो लाइक दिस वे ओनली दिस जनरल इंग्लिश विल बी व्हाट डिस्कस्ड, और इस तरीके से कोई भी ना, तो कोई भी भाषा है या कोई भी सब्जेक्ट को ऐसे ही सीखा जाता है, तो इस तरीके से जनरल इंग्लिश। नाउ कंक्लूसिवली in a single go if you will say, तो कैसे बोलेंगे जनरल इंग्लिश में? if you will say, तो जनरल इंग्लिश में भी asked in different competitive exams, school, colleges, universities, that may be different, used in the various curricula as well in the general spoken day to day life. And we are just discussing via the Learning Education Center platform for this general English. Now, comprehension, that may be as in passage, unseen passage, precise writing, one-third writing we need to do. Then usage and vocabulary. First, initially do the words, mug up the words, and then use them in the sentences. Short essays, grammar, sentence correction, synonyms and antonyms. Synonyms mean same meaning, antonyms mean the opposite meaning. Idioms and phrases, active and passive words, direct and indirect speeches. If you will go through the grammar, if we have the parts of speech, then we noun, pronoun, adjective, verb, adverb, like this, conjunction, interjection, like preposition, like this. And articles, we have two articles, definite and indefinite, and a and a are a and n, they are indefinite articles, and the is definite article. Tenses, past tense, present, future tense. Past is also having indefinite, simple past or indefinite, past indefinite, both are same. Past continuous, past perfect and past perfect continuous. Likewise present and likewise future. Active and passive voices, direct and indirect speeches, subject verb agreement and common errors. However, the questions of common error may be asked like this, that error may be as per noun, parts of speech error, that there may be an error of spellings, or that may be an error of tenses, that may be an error of gender, that may be an error of anything, that may be an error of spelling mistakes, or the arranging, okay, ahead and back, look back. So like this, there may be a possibility that some ahead section that may be written initially, or initial section that will be written ahead. So likewise, this general English should be what taught and teached either via this Learning Education Center or Learning Educare. Pushpendra Singh Kharath here teaching this general English. However, we will continue this general English, the topic of this English thoroughly one by one, and the playlist, this video will be uploaded to the playlist, and as soon as the updation is there in the playlist, so there would be a more advancement topics related to this English.